Very good afternoon, students. Now we comes on third lecture of sequence and series, and we continue with a ratio test. In last lecture we have seen a p test and comparison test, and now we will continue with a ratio test. Now how we take that test? If un contains the terms of a type, that un is a series, suppose that summation of un is a series containing the terms of the type a raised to n, where a is a constant and n is a power, n factorial, that means factorial term in that series, continuous product terms, n raised to n, such a types of terms comes in a series, then we can apply the ratio test. Now how we can apply this test? If your series should be in this form, summation of un be the series given, so you have to take the limit n tends to infinity un upon un plus 1. So for that you have to first find un plus 1. As you have the un, so from that value of un you can calculate un plus 1. Then you have to apply the limit as un upon un plus 1, and that limit should be, suppose, L. It should be in the form of L. Now there are possibility that limit is finite or not, and then we say that the series is convergent or divergent. So the first case, the series un is a convergent if that limit L is greater than 1. अगर limit रहता है greater than 1 से, so we say that the series is convergent. If the limit is less than 1, so it is a divergent. That implies the divergence of the series. When the series is, limit is L is equals to 1, then in that case the test fail. And so these are all three cases for checking the convergence and divergence of the given series, that is called as a ratio test. So we see one by one problems on that ratio test. Here I have written one problem. If the given series should be in the form of summation n equals to 1 to infinity n cube upon 3 raised to n, we have to test the divergence or a convergence of the given series. So first we write down the given series. So what is your series here? Summation n equals to 1 to infinity n cube upon 3 raised to the power n. So here what is your un? That is nth term of that series, that un should be equals to n cube upon 3 raised to the power n. That is nothing but a nth term of series. और जो series भी रहती है वो जो आपकी दी रहती है, दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ nth टर्म. तो ये nth टर्म हो गई. उसके बाद हमें n प्लस 1th टर्म निकालनी है, देयरफॉर un प्लस 1. नाउ un प्लस 1 कैसे निकालेंगे हम? सिंपली योर n इज रिप्लेस बाय n प्लस 1. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज n प्लस 1 क्यूब अपॉन 3 रेज़ टू द पावर n प्लस 1. ऐसे फॉर्म में आ जाएंगी वो. सो इन दिस वे वी कैन गेट दैट un and un plus 1, and now we apply the limits, that is उसके बाद लगे तो हम ये रेशो भी निकाल लेंगे, that is un upon un plus 1. So how you get that un upon un plus 1? That is n cube upon 3 raised to the power n into, यहाँ पे क्या आ जाएगा? when you separate the powers, that is a 3 raised to n plus 1, so it can be written as 3 raised to n into 3. So that can be written as, ये क्या हो जाएगा? ये टर्म रिवर्स में न्यूमरेटर में चली जाएंगी, या फिर वी कैन राइट इन दिस वे, दैट इज n प्लस 1 होल क्यूब अपॉन हियर इज अ 3 रेज़ टू n इनटू 3. नाउ व्हेन यू टेक अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब यहाँ पे अगर आप लेंगे इस फॉर्म में, दैट इज un अपॉन un प्लस 1, सो दैट इज इक्वल्स टू n क्यूब अपॉन 3 रेज़ टू n, और ये जो टर्म है 3 रेज़ टू n 3, ये न्यूमरेटर में चली जाएगी व्हेन यू टेक अ मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 3 रेज़ टू n इनटू 3 अपॉन n प्लस 1 होल क्यूब. एंड नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस टर्म. नाउ हाउ टू सिंप्लीफाई दिस टर्म? दैट इज इक्वल्स टू, वी टेक फ्रॉम दैट n क्यूब कॉमन, सो दैट इज n क्यूब, हियर इज अ 3 रेज़ टू द पावर n, so that 3 रेज़ टू n 3 रेज़ टू n get a common, here is a that 3, so 3 into n cube. In denominator we take a common, that is n cube. When you take a n cube common from the bracket, so here is a 1 plus 1 by n, and that whole bracket cube.
सो इस तरह से हम उस ब्रैकेट को लिख सकते हैं. वी टेक n cube out of the bracket. So here n cube get a cancel. That is a 3 upon 1 plus 1 by n whole cube. तो ये हो गया आपका un upon un plus 1. And now we apply the limits. Therefore the limit n tends to infinity un upon un plus 1. So that should be equals to limit n tends to infinity. So value of that un upon un plus 1 is nothing but 3 upon 1 plus 1 by n raised to the power 3. So that is equals to, when you apply the limits, 3 upon, here is a 1 plus 1 by infinity raised to 3. 1 by infinity is nothing but a 3. So 3 upon, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 plus 0 raised to 3. As 1 by infinity क्या रहती है वैल्यू 0 रहती है. So that gives 3 upon 1, that is nothing but a 3. तो फाइनली हमारा लिमिट क्या आ रहा है. So the limit n tends to infinity un upon un plus 1, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है. And what is that? It is greater than 1 or not? Yes, it is a greater than 1. अगर ये greater than 1 है तो what we say? Therefore we say that therefore the series yes it is a convergent series. अगर लिमिट की वैल्यू हमारी अगर ग्रेटर देन 1 रहती है इट इज अ कॉन्वर्जेंट सीरीज, लेस देन 1 रहती है इट इज अ डाइवर्जेंट सीरीज. अगर वो इक्वल्स टू 1 रहती है देन केस फेल्ड इन दैट केस. तो दीज आर 3 केसेस. तो हमारे यहाँ पे प्रूव होती है कि दैट लिमिट इज ग्रेटर देन 1 एंड देयरफॉर द सीरीज इज कॉन्वर्जेंट. इस तरह से हमने ये सीरीज कॉन्वर्जेंट दिखाई. कैसे दिखाई हमने? सबसे पहले तो फ्रॉम द सीरीज वी गेट द nth टर्म. ये nth टर्म रहती है हमारी n क्यूब अपॉन 3 रेज़ टू n. nth टर्म के बाद हमने n प्लस 1th टर्म ली. उसके बाद उनका रेशो लिया दैट इज un अपॉन un प्लस 1 एंड देन दैट इज इक्वल्स टू n क्यूब अपॉन 3 रेज़ टू n. यहाँ पे un प्लस 1 की वैल्यू पुट की. un प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पे 3 रेज़ टू n प्लस 1 को स्प्लिट कर दिया दैट इज 3 रेज़ टू n इंटू 3. फिर यहाँ पे हमने ये टर्म क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले ली क्योंकि हमें पता है कि ये टर्म जब मल्टीप्लिकेशन में जाएंगी तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा. तो यहाँ पे हमने n क्यूब अपॉन 3 रेज़ टू n इंटू ये टर्म चली गई आपकी न्यूमरेटर में 3 रेज़ टू n अपॉन इंटू 3 अपॉन दिस. उसके बाद 3 रेज़ टू n गेट कैंसल. 3 अपॉन यहाँ पे हमने n क्यूब कॉमन ले लिया 1 प्लस 1 बाय क्यूब. सो दैट इज n क्यूब गेट कैंसल. 3 अपॉन 1 प्लस 1 बाय होल क्यूब. And then we apply the limits to that. Finally, we get the limit as a 3. So we say that the given series is a convergent series. Now here I have written another problem. That is, if the given series is summation n equals to 1 to infinity 5 raised to n plus a upon 4 raised to n plus b, we have to again check the series is convergence or a divergence. Again we check it by using a ratio test. So सबसे पहले गिवन सीरीज लिख लेंगे n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 5 रेज़ टू n प्लस a अपॉन 4 रेज़ टू n प्लस b. अब यहाँ पे un क्या होगा? ये जो टर्म रहती है दैट इज nth टर्म डिफाइन करती है सीरीज की. तो यहाँ पे un होगा un इक्वल्स टू 5 रेज़ टू द पावर n प्लस a अपॉन 4 रेज़ टू द पावर n प्लस b. अब un प्लस 1 क्या होगा? जो n रिप्लेस हो जाएगा n प्लस 1 से उस टर्म में दैट इज योर un प्लस 1th टर्म. सो वी राइट un प्लस 1th टर्म हियर. सो 5 रेज़ टू द पावर n इज रिप्लेस बाय n प्लस 1 प्लस a अपॉन हियर 4 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 प्लस b. उसके बाद un अपॉन un प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू un क्या है यहाँ पे? अब un की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 5 रेज़ टू द पावर n प्लस a अपॉन 4 रेज़ टू द पावर n प्लस b. ये है un अपॉन हम लिखेंगे un प्लस 1. अब यहाँ पे हम पावर सेपरेट कर सकते हैं. जैसे 5 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 को कैसे लिखेंगे? दैट इज 5 रेज़ टू n इंटू 5. सिमिलरली 4 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 कैन बी रिटन एज 4 रेज़ टू n इंटू 4. तो इस तरह से हम उसको सेपरेट कर देंगे. सो वी राइट 5 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 प्लस a अपॉन 4 रेज़ टू द पावर n इंटू 4 प्लस b. इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं nth पावर के फॉर्म में.
आगे के स्टेप में वी राइट दैट टर्म दैट इज 5 रेज़ टू द पावर n प्लस a अपॉन 4 रेज़ टू द पावर n प्लस b। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब लेंगे तो ये डिनोमिनेटर की टर्म जाएंगे न्यूमरेटर में और ये आ जाएंगे डिनोमिनेटर में। सो वी टेक हियर दैट इज इनटू, यहाँ पे 4 रेज़ टू n इंटू 4 प्लस b, यहाँ पे आ जाएगा 5 रेज़ टू n इंटू 5 प्लस a। इस तरह से आपको आपकी टर्म मिल जाएंगी। अब हमें लेना है इसको लिमिट, यहाँ पे कोई टर्म कैंसिल होने वाली नहीं है, वी हैव टू अप्लाई द लिमिट्स एंड देयर वी टेक द कॉमन, यहाँ से टू टेक द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। सो यहाँ पे un अपॉन un प्लस 1, या फिर यहाँ से एक स्टेप आप ले सकते हैं बट ठीक है कोई, अब वी कैन टेक दैट कॉमन। यहाँ से हमने 5 रेज़ टू द पावर n ले लिया तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 प्लस a अपॉन 5 रेज़ टू n, यहाँ पे 4 रेज़ टू n ले लिया सो 1 प्लस b अपॉन 4 रेज़ टू n इंटू अनदर ब्रैकेट क्या आ जाएगा दैट इज 4 रेज़ टू n, वी टेक अ कॉमन, यहाँ पे 4 प्लस b अपॉन 4 रेज़ टू n इन डिनोमिनेटर 5 रेज़ टू n टेक अ कॉमन, 5 प्लस a अपॉन 5 रेज़ टू द पावर n। इस तरह से आ जाएगा हमारा सिंप्लीफिकेशन। इस टर्म से हमने 5 रेज़ टू n लिया, डिनोमिनेटर से 4 रेज़ टू n लिया, यहाँ से 4 रेज़ टू n लिया और यहाँ से 5 रेज़ टू n लिया। अब क्या दिख रहा है कुछ हमें, यस कुछ कैंसिल होने वाले हैं, यस दैट गेट ए कैंसिल, हियर इज आल्सो गेट ए कैंसिल, और सिंप्लीफिकेशन हो गया हमारे टर्म का। एंड नाउ वी कैन अप्लाई द लिमिट्स एंड देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस a अपॉन 5 रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 प्लस b अपॉन 4 रेज़ टू द पावर n इंटू 4 प्लस b अपॉन 4 रेज़ टू n अपॉन 5 प्लस a अपॉन 5 रेज़ टू n। ओके, एंड नाउ वी अप्लाई द इंफिनिटी। सो b अपॉन यहाँ पे 4 रेज़ टू n, यहाँ पे क्या है जो कुछ भी टर्म होंगे आपकी 4 रेज़ टू n दैट इज 4 रेज़ टू इंफिनिटी, एनी रेज़ टू इंफिनिटी इज नथिंग बट अ इंफिनिटी। जैसे यहाँ पे 5 रेज़ टू n है तो इसकी भी वैल्यू इंफिनिटी हो जाएंगी। सो दैट इज इक्वल्स टू व्हेन यू अप्लाई द लिमिट्स यू गेट 1 प्लस a अपॉन इंफिनिटी इंटू 4 प्लस b अपॉन इंफिनिटी, देन यहाँ पे 1 प्लस b अपॉन इंफिनिटी इंटू 5 प्लस a अपॉन इंफिनिटी। ऐसे फॉर्म में आ जाएगा आपका आंसर। अब 1 बाय इंफिनिटी हमें पता है कि क्या रहता है, 1 बाय इंफिनिटी इज नथिंग बट अ 0, तो ये 1 बाय इंफिनिटी के फॉर्म में है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 इंटू ए दैट इज ऑल्सो 0, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो रहेगा क्या उस टर्म में, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 प्लस 0 बिकॉज a इंटू 1 बाय इंफिनिटी, a इंटू 1 बाय इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी 0, 0 इंटू ए बिकम 0, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4 प्लस 0, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 0। सो फाइनली क्या हो जाएगा आपका, व्हाट इज योर लिमिट, यू गेट 4 इंटू 1 दैट इज 4 बाय 5, सो योर आंसर इज 4 बाय 5। नाउ चेक इट इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। अब 4 बाय 5 की वैल्यू क्या होंगी आपके पास, व्हाट इज दैट 4 बाय 5, सो दैट इट कम्स इन अ पॉइंट दैट इज 0.8, 4 by 5 is a 0.8 and that is nothing but a less than 1. It is a less than 1. अब अगर ये less than 1 आ रहा है, so what we say that is a less than 1. अगर लिमिट का आंसर less than 1 रहता है, so obviously the series is a divergent series and that implies given series is divergence. Series is a divergent series. So in this way we see one example of divergent series also. Now we will see one more problem on that. Here I have written the another problem, that is summation n equals to 1 to infinity x raised to n minus 1 upon n into 3 raised to n. That is a given series and we have to check the divergence or a convergence of that series. Again यहाँ पे सबसे पहले हम given series लिख लेंगे. What is our given series here? As it is, that is summation n equals to 1 to infinity, there is x raised to n minus 1 upon n into 3 raised to n. That implies
हमारी nth टर्म क्या होंगी, दैट इज x रेस टू n माइनस 1 अपॉन n इंटू 3 रेस टू n, दैट इज अवर nth टर्म। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, यस वी फाइंड u n प्लस 1 दैट इज n प्लस 1th टर्म। सो दैट गिव्स, जहाँ जहाँ पे भी आपका n है n रिप्लेस हो जाएगा n प्लस 1 से, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू 3 रेस टू n प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इम्प्लाइज x रेस टू n प्लस 1 माइनस 1 दैट इज x रेस टू n अपॉन n प्लस 1 देन 3 रेस टू n इंटू 3। तो ये हो गया आपका u n प्लस 1। अब उसके बाद हम क्या लेंगे, इसका रेशो लेंगे, दैट इज u n अपॉन u n प्लस 1, दैट शुड बी इक्वल्स टू, ये आपका u n है दैट इज x रेस टू n माइनस 1 अपॉन n इंटू 3 रेस टू n। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर की टर्म न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस 1 3 रेस टू n इंटू 3 अपॉन x रेस टू n। ओके, अब हमें पता है x रेस टू n माइनस 1 को कैसे लिखते हैं हम, वी कैन राइट x रेस टू n माइनस 1 दैट इज x रेस टू n इंटू x रेस टू माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं उसको। सो दैट शुड बी इक्वल्स टू x रेस टू n x रेस टू माइनस 1, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं दैट इज x रेस टू n x रेस टू माइनस 1। क्यों हमने ये स्प्लिट किया, बिकॉज यहाँ पे x रेस टू n x रेस टू n कैंसिल हो जाएगा, 3 रेस टू n इज ऑल्सो गेट कैंसल। अब उसके बाद क्या रहेगा, u n अपॉन u n प्लस 1 इज इक्वल्स टू x रेस टू माइनस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू 3 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा n। तो इस तरह से हमें वो टर्म मिल जाएंगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब un प्लस 1 हमें मिल गया है, सो दैट वी राइट हियर दैट इज n प्लस 1 इंटू 3, यहाँ से और कुछ कॉमन निकल सकता है, ये x रेस टू माइनस 1 कैन बी रिटन एज 1 बाय x, तो इसको डिनोमिनेटर में ले लेंगे, यहाँ पे n ले लेंगे, और हमें पता है कि n प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं हम, दैट n प्लस 1 कैन बी रिटन एज n टेक अ कॉमन दैट इज 1 प्लस 1 बाय n। सो ये जो टर्म थी आपकी n प्लस 1, वी राइट n टेक अ कॉमन इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाय n, then n get cancel here, so remaining is a 3 by n into 1 plus 1 by n। so इस तरह से आ गया आपका un upon un plus 1। then finally what we write limit, so limit n tends to infinity un upon un plus 1 equals to limit n tends to infinity, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 by, सॉरी यहाँ पे ये नॉट n कैंसिल हो गया, x रहेगा 3 by x इंटू 1 प्लस 1 बाय n। अब जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 3 बाय x 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिटी। 1 बाय इन्फिनिटी सबको पता है 0 आता है, सो दैट इज 3 बाय x 1 प्लस 0। सो फाइनली व्हाट यू गेट, द आंसर ऑफ लिमिट इज 3 बाय x। अब यहाँ पे हम ये नहीं कंफर्म बोल सकते कि इट इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, बिकॉज देयर इज 3 बाय x, और x क्या है यहाँ पे, x इज अ वेरिएबल, तो सभी पॉसिबिलिटी के लिए हमें ये वैल्यू लिखनी पड़ेंगी। अब पॉसिबिलिटी क्या रहेंगी कि इफ 3 बाय x इज ग्रेटर देन 1 देन सीरीज इज कॉन्वर्जेंट, दैट इज किसके लिए, फॉर ये x इधर चला जाएगा, फॉर 3 इज ग्रेटर देन x, दैट इम्प्लाइज x इज लेस देन 3। जब x 3 से लेस होगा तो सीरीज क्या होंगी, कॉन्वर्जेंट होंगी। सेकंड केस हम चेक करेंगे, सेकंड केस क्या रहेंगी, ये फर्स्ट केस हो गई, इफ 3 बाय x इज लेस देन 1, अगर 3 बाय x लेस देन 1 रहा तो क्या होगा, देन सीरीज इज डाइवर्जेंट। अब डाइवर्जेंट किस केस में रहेंगी, when 3 is less than, that implies when 3 is less than x, so in that case series क्या रहेंगे आपकी, डाइवर्जेंस। उसके बाद थर्ड केस क्या होंगी, व्हाट इज द थर्ड केस, इफ 3 by x is equals to 1, 3 by x is equals to 1, that implies 3 is equals to x रहा तो क्या होगा, यहाँ पे
केस फेल हो जाएंगे। हमें पता है कि जब लिमिट की वैल्यू 1 आती है तो इन दैट केस गेट फेल, दैट वी कांट चेक दैट इट इज अ डाइवर्जेंस और अ कन्वर्जेंट। तो ये तीनों भी केस हमने लिख ली क्योंकि हमारा जो लिमिट था दैट इज अ 3/x and that doesn't have the finite value or particular value because there is a x and x is a variable। तो जैसे x चेंज होगा तो उस तरह से इस लिमिट की भी वैल्यू चेंज होगी। तो हम पॉसिबिलिटी तीनों भी चेक करेंगे यहाँ पे कि इफ 3/x इज ग्रेटर देन 1 रहा लिमिट, देन व्हाट इज सीरीज इज कॉन्वर्जेंट, बिकॉज हमें पता है कि लिमिट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 रहती है सीरीज कॉन्वर्जेंट, दैट इज फॉर व्हेन 3 इज ग्रेटर देन x। तो इस केस में क्या रहना चाहिए, 3 ग्रेटर देन x रहना चाहिए, दैट मीन्स x इज लेस देन 3 रहना चाहिए। सेकंड केस में क्या पॉसिबिलिटी लेंगे कि लेस देन 1 है सपोज लिमिट, तो सीरीज डाइवर्जेंट होंगी। सीरीज किस केस में डाइवर्जेंट हो सकती है, व्हेन 3 इज लेस देन x और x इज ग्रेटर देन 3। उसके बाद थर्ड केस में हम क्या लेंगे कि इफ 3/x इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ केस हमारी क्या होती है, फेल होती है। सो दीज आर 3 केसेस वी हैव चेक फॉर द गिवन लिमिट्स। तो ये था एक और प्रॉब्लम, अगेन इट इज ए इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, और एक प्रॉब्लम हम इस पे देखेंगे। Here I have written the series that is 2/1 plus 2 into 5/1 into 5 plus 2 into 5 into 8 upon 1 into 5 into 9 plus 2 into 5 into 8 into 11 upon 1 into 5 into 9 into 13। अब ये सीरीज है, आप लोगों को ध्यान में आने के लिए कि सीरीज कौन से फॉर्म में है, तो यहाँ पे nth टर्म पे कॉन्सेंट्रेट करो। nth टर्म कौन से फॉर्म में आपके, इट्स 2 into 5 into 8 एंड सो ऑन into 3n-1 अपॉन 4n-1। मतलब इस फॉर्म में आपकी सीरीज एक्सपांड हो रही है, जैसे आपका एक एक n बढ़ते जा रहा है उस तरह से यहाँ पे भी टर्म भी बढ़ते जा रहे हैं। सो दैट वी हैव टू शो अगेन इट इज अ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। अब ये क्या है, आपकी nth टर्म है, दैट इज nth टर्म, और हमें nth टर्म ही चाहिए रहती है सीरीज कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस दिखाने के लिए। दैट मीन्स हियर हम डायरेक्टली लिख लेंगे सीरीज की बजाय un क्या है हमारा, दैट un इज इक्वल्स टू 2 into 5 into 8 into 3n-1 upon, here is a 1 into 5 into 9 into 4n-1। तो ये है आपका un। अब हमें un प्लस 1 भी लेना है, तो un प्लस 1 कैसे होगा, तो un प्लस 1 में ये तो पूरी टर्म आएंगी, पर उस पर आगे की एक टर्म आएंगी दैट इज n प्लस 1th टर्म। तो कैसे लिखेंगे हम un प्लस 1, दैट इज 2 5 8 देन 3n-1 इनटू नेक्स्ट टर्म क्या होंगी आपकी n प्लस 1 है, सो नेक्स्ट n इज रिप्लेस बाय n प्लस 1 माइनस 1। इन डिनोमिनेटर में भी ये टर्म तो एज इट इज रहेंगी 1 5 9 4n-1 और नेक्स्ट 4 इंटू n प्लस 1 माइनस 1। तो इस तरह से हमें un एंड un प्लस 1 दोनों भी टर्म मिल गई है। अब लेंगे हम उसका रेशो, सो देयरफॉर un अपॉन un प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, un जो है हमारी उसको एज इट इज लिख लेंगे हम, व्हाट इज योर un एंड देयरफॉर un अपॉन un प्लस 1, सो दैट शुड बी इक्वल्स टू 2 5 8 3n-1 अपॉन 1 5 9 4n-1 इंटू ये टर्म न्यूमरेटर में चले जाएंगे 1 5 9 4n-1 इंटू 4n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 8 3n-1 इंटू 3 इंटू n प्लस 1 माइनस 1। सो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है यहाँ तक की इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी, ये यहाँ तक की टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएंगी, सो रिमेनिंग टर्म है आपकी इतनी टर्म। सो दैट इज अ un अपॉन un प्लस 1। क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 4n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3, सॉरी यहाँ पे 4 मल्टीप्लीकेशन में तो 4n प्लस 4 माइनस 1, वैसे डिनोमिनेटर में
3n प्लस 3 माइनस 1। तो यहाँ पे 4n प्लस 3 अपॉन 3n प्लस 2। तो इस तरह से हमें ये un अपॉन un प्लस 1 की टर्म मिल गई, रेशियो मिल गया। अब उसको हम करेंगे अप्लाई लिमिट्स। तो क्या आते हैं हमारे लिमिट्स, वो भी देखेंगे। दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 4n प्लस 3 अपॉन 3n प्लस 2। तो हमें पता है जब इंफिनिटी रहते हैं तो जो n की टर्म रहती है वो कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से। तो कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, n की टर्म कैंसिल हो जाएंगी। n क्यों कॉमन लेते हैं हम, क्योंकि अगर कॉमन ले लिया बोथ गेट कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन लेने के बाद n आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो व्हेन वी अप्लाई द इंफिनिटी तो इट बिकम अ 1 बाय इंफिनिटी, एंड 1 बाय इंफिनिटी आने के बाद we get the answer 0, that is a finite, and that's why every time we take that n common from numerator and denominator। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 बाय n, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 बाय n, and then get cancelled when you apply the limits। that gives 4 plus 3 by infinity upon 3 plus 2 by infinity। हमें पता है 1 by infinity is 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस 0 अपॉन 3 प्लस 0, दैट इज अ 4 बाय 3। अब ये 4 बाय 3 क्या होगा, इट इज अ ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। चेक इट इज, यस इट इज अ ग्रेटर देन 0। सो अगर ये ग्रेटर देन 0 है 4 बाय 3 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1। सो देयरफॉर व्हाट वी से, देयरफॉर द सीरीज इज convergent, the given series is convergent as the limit of that term un upon that ratio un upon un plus 1 is a greater than 1. Here I have given 3 problems for your homework. Summation n equals to 1 to infinity 2 raised to n plus 1 upon 3 raised to n plus 1। यहाँ पे आपको चेक करना है डाइवर्जेंस और कॉन्वर्जेंस। आंसर आता है इसका कॉन्वर्जेंस। उसके बाद ये सीरीज है, इसका आंसर नहीं दिया मैंने यहाँ पे, यू हैव टू चेक इट and then tell me that convergence or a divergence। और एक नोट यहाँ पे ध्यान में रखना कि when your limit should be in this form n tends to infinity 1 plus 1 by n raised to n, तो उसका आंसर रहता है e। ये इसलिए मैंने यहाँ पे नोट लिख के दिए क्योंकि आगे की जो सीरीज आप चेक करेंगे इट इज अ कॉन्वर्जेंस और अ डाइवर्जेंस, सो यू गेट द लिमिट शुड बी इन दिस फॉर्म, दैट इज इक्वल्स टू e आएगा उसका आंसर। सो यू हैव टू चेक हियर दैट इट इज अ कॉन्वर्जेंस और अ डाइवर्जेंस, और उसका जो आंसर रहता है दैट शुड बी इक्वल्स टू 2.7, दैट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 रहता है। तो यहाँ पे इस केस में वो ये अगर आया तो योर सीरीज शुड बी अ कॉन्वर्जेंट। सो यू हैव टू सॉल्व दिस 3 प्रॉब्लम्स, दैट इज फॉर योर होमवर्क, एंड यू हैव टू सॉल्व इट बाय यूजिंग अ रेशियो टेस्ट। और आगे की जो नेक्स्ट टॉपिक है वी विल कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर। तो अब यहाँ पे करते हैं हम स्टॉप स्टूडेंट, थैंक यू।